قوم جن پر اللہ کا انعام ہوا. اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ کی طرف سے انعام پانے والے 4 طبقے ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. پھر صالحین کے 4 طبقے ہیں: ابدال، قطب، غوث اور خواجہ. آج مجھے آپ حضرات کی خدمت میں نبوت، صداقت اور شہادت کے بعد ولایت یعنی اولیاء کاملین کا سرکھیل اور مانگرول سے جن کا گہرا رشتہ رہا اور سومناتھ میں جا کر کے 699 ہجری میں اپنی جان آفری کے حوالے کی حاجی مانگرول شاہ یعنی محمد بن حسن بن علی العراقی رحمہ اللہ تعالی علیہ رحمت الواسعہ کا مختصر تذکرہ کرنا ہے. اپنے آبا اور اجداد اور جن کے صدقے میں سنت رسول اور اسلامی لباس تن پر زیب دیتا ہے، ان بزرگوں کے ہمیں تاریخ سے واقفیت حاصل نہیں. کن کے نتیجے میں، کن قربانیوں کے سلے میں یہ دین ہمیں ملا ہم نہیں جانتے ہیں. لوگ کہتے ہیں مانگرول شاہ، مانگرول شاہ، مانگرول شاہ، یعنی کوئی باپو مانگرول سے آیا ہوگا اور اس نے اپنی مزار وہاں بنا لی، نے مانگرول شاہ ہو گئے. ایسی بات نہیں ہے. ایک زبردست روشن تاریخ جس کے پیچھے کام کرتی ہے، جو ہمارے کرم فرما ہے، جو ہمارے محسن ہے. لیکن ہمیں شیخ ابو الحسن عراقی سے نہیں، ہمیں کل کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، فخر موجودات، آقا مکی مدنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدھا جو ہے نسبت قائم کرنی پڑے گی تو بات سمجھ میں آئے گی. حجۃ الوداع کے خطبے میں الا هل بلغت، الا هل بلغت، الا هل بلغت، اور صحابہ نے جواب دیا ادیت الامانہ وبلغت الرسالہ. جیسا پہنچانے کا حق تھا ویسا آپ نے پہنچا دیا، پہنچایا ہی نہیں، جیسا پہنچانے کا حق تھا وہ حق بھی ادا کر دیا. امر نبوت مستحکم ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام پورا کر کے اللہ کی رحمت میں تشریف لے گئے. سیدنا ابوبکر صدیق نے 2.5 سال امت کو سنبھالا، ناسازگار حالات کو سازگار بنایا، اسلام دشمن عناصر کی بیٹ کونے کی اور اس کا خاتمہ کیا، مانعین زکات اور مرتدین کا خاتمہ کیا، مسیلمہ کذاب، اسود عناصی اور جھوٹے نبوت کے مدعین کا خاتمہ کیا، جیسے اسامہ کی روانگی ہوئی. جتنے حالات تھے ان سب کا سیدنا ابوبکر صدیق نے مقابلہ کر کے 2.5 سال میں ماحول سازگار کر دیا. آقا کی رحلت کے بعد سن ہجری 15 ہوئی. آقا ابھی دنیا سے تشریف لے گئے، اس کو 4 سال ہوئے ہیں. 2.5 سال ابوبکر کے نکال دو، 1.5 سال سیدنا فاروق اعظم کے ابھی پورے ہوئے تھے. سیدنا فاروق اعظم نے حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمان اور بحرین کا گورنر بنا کر کے بھیجا تبلیغ اسلام کے لیے. حضرت عثمان ابن ابی العاص بحرین اور عمان کے گورنر منتخب ہوئے. انہوں نے اپنے بھائی حکم ابن ابو العاص کو سیدھے عربستان سے ہندوستان میں نرمدا کے کنارے بھاڑ بھوت
حکم ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورود مسعود سرزمین ہندوستان میں گجرات میں بروچ میں ہوا۔ حکم ابن ابی العاص کے بعد انہوں نے اپنے بھائی عثمان ابن ابو العاص کو دوسری مرتبہ گجرات کے دورے پر بھیجا۔ گویا کہ حکم ابن ابی العاص پہلا صحابی رسول سن ہجری 15 میں ملک ہندوستان میں گجرات میں اسلام کی نشو و نما کے لیے اور دعوت و ارشاد کے لیے سب سے پہلا وہ صحابی رسول تشریف لائے۔ پھر عثمان ابن ابی العاص ان کے بھائی تشریف لائے۔ سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت میں ایک باپ کے 3 بیٹے عثمان ابن ابی العاص، حکم ابن ابی العاص اور مغیرہ ابن ابی العاص، یہ تینوں بھائی جن سے ہمیں اسلام ملا، جن سے ہندوستان کے اندر اسلام کی باغدور ہوئی، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ختم ہوا، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان ابن المحلب کو بھیجا۔ حضرت عثمان ابن عفان کے دور خلافت کے بعد علی ابن ابی طالب کے دور میں ہندوستان میں اشاعت اسلام ہوا۔ علی ابن ابی طالب کے بعد حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں، امیر معاویہ کے بعد ولید ابن عبد الملک کے دور خلافت میں، ولید ابن عبد الملک کے بعد ان کی طرف سے گورنر عمان کا حجاج بن یوسف ثقفی تھا۔ حجاج بن یوسف ثقفی نے سن ہجری 93 میں محمد بن قاسم کو سب سے پہلے ہندوستان کے اندر گجرات میں اور سوراشٹر کے اندر ان کی آمد ہوئی۔ کہاں پہنچے؟ سن ہجری 93۔ سن ہجری 93 میں یہ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف ثقفی جب گورنر بنا تو حجاج بن یوسف ثقفی نے محمد بن قاسم کو ان علاقوں کے اندر روانہ فرمایا۔ گویا کہ سن ہجری 93 میں اسلام ان خطے کے اندر داخل ہوا۔ یہ تو میں نے آپ کو کڑی سے کڑی ملا دی۔ پھر اسلام کے عظیم سپوت سلاطین بادشاہوں کی شکل میں آتے رہے، جن میں تقریباً 4 صدی ہجری میں افغانستان کے غزنہ سے سلطان محمود غزنوی، انہوں نے علاقے کے اندر خبر نکالی دعوت و ارشاد کی بنیاد پر۔ اس طرف متوجہ کرنے والا وہ شخص تھا جن کو 747 سال کے بعد جن کی قبر اطہر اور جن کے روزے کو پچھلی سنیچر کو مسمار کیا ہے۔ آج اس کو 747 سال ہوئے، یاد ہے آپ کو؟ جانتے ہیں میں نے 1 ہفتے بھر دن اور رات محنت کی اور درجنوں کتابیں پرانی جمع کر کے یہ میں بولتا ہوں۔ بہت محنت کے بعد مواد آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بہت محنت ہوئی ہے، ویسے 15 دن سے سخت بیمار رہا۔ اس زمانے میں یہ مواد جمع کرتا رہا میں، پچھلی سنیچر سے لے کر آج تک عربی میں، فارسی میں، سنسکرت میں، اردو میں اور گجراتی میں 5 زبانوں میں میرے پاس مواد تیار ہو گیا ہے۔ اب آپ سمجھیے، پہلے بات ذہن میں رکھیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اعلان کیا تھا فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں ہے وہ میرا دین رہتی دنیا تک کی نسل انسانی کو پہنچا دے۔ کہ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع میں ذمہ داری سپرد کی۔ نام دے دو دعوت و تبلیغ، نام دے دو مدرسہ، نام دے دو خانقاہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کل کائنات کا خلاصہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں یہ خطبہ دے دیا تھا اور اعلان کر دیا تھا، میرا دین رہتی دنیا تک کی نسل انسانی کو اب تمہیں پہنچانا ہے۔ یہ بیڑا اٹھایا امیر المومنین
खलीफतुल मुस्लिमीन अल्लाह की मुराद हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सन हिजरी 15 में उस्मान इब्न अबुल आस को अम्मान और बहरीन का गवर्नर बनाया। और अम्मान और सोमनाथ बिल्कुल अपोजिट है। ये अम्मान है, ये सोमनाथ है। मैं बोलूंगा, आप तवज्जो दें। ये अम्मान है, ये सोमनाथ है। अम्मान से उस वक्त अम्मान और बहरीन का गवर्नर उस्मान इब्न अबुल आस सहाबी रसूल है, उमर भेज रहा है अम्मान और बहरीन में। अम्मान और बहरीन में रहते हुए उस्मान इब्न अबुल आस ने अपने भाई हकम इब्न अबुल आस को हिंदुस्तान में गुजरात भेजा। बंबई और भरूच तक इनकी आमद और इनके भाई मुगीरा इब्न अबुल आस सीधे नर्मदा उतर चुके। इस्लाम गोया के 13वीं सदी के अंदर हिंदुस्तान में बंबई यानी महाराष्ट्र और गुजरात में आ चुका। फिर हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के दौर में, फिर हजरत अली के दौर में, फिर हजरत अमीर मुआविया के दौर में, फिर वलीद इब्न अब्दुल मलिक के दौर में, और हज्जाज इब्न यूसुफ सकफी ने बाज़ाब्ता मोहम्मद बिन कासिम को इस खित्ते के अंदर नामजद कर दिया। लोग मोहम्मद बिन कासिम से जानते हैं, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम से पहले को नहीं जानते। मैंने आपको कड़ी से कड़ी मिला दी है। इस्लाम बहुत पुराना है। पूरे सौराष्ट्र में बाटवा, पुतियाना, इधर ऊना, इधर खंबात, दूर दूर तक मैं आपको मुकम्मल हिस्ट्री बयान करूंगा। हजारों सफहात की हिस्ट्री है, मुख्तलिफ जुबानों में ट्रांसलेशन हुआ। इसमें श्रीमती सरला देवी, एक हिंदू औरत ने 3 भाषा में तारीख लिखी है। श्रीमती सरला देवी शंभू महाराज देसाई, श्रीमती सरला देवी शंभू महाराज देसाई ने अरबी में, संस्कृत में और इस तरीके से जो है अंग्रेजी के अंदर लिखा है। उसी से काफी मवाद खंगालने के बाद मुश्किल से हजरत हाजी मांगरोली शाह की तारीख के वफात उसमें मिली, अरबी में। वहां तो मौजूद थी, लेकिन वो कतबा तो खत्म कर दिया। कतबा और लेख, शिला लेख से तारीफ होती है तमाम की। जैसे हमारी जामे मस्जिद के मेहराब के पास कतबा बना हुआ है, उसमें पत्थर में कंदा है। मस्जिद कैसे बनी, कब बनी, किसने बनाई, इसी के साथ मुझे मांगरोल की 23 मस्जिदों के कतबा अरबी में मिले जो सलातीन ने बनाई, और मांगरोल के 28 मज़ारात के निशानदही हुई। और मांगरोल पूरे सौराष्ट्र का उस जमाने में इस्लामी मरकज था, और इसको सोरठ जिला कहते थे। सोरठ, सौराष्ट्र में सोरठ जिला कहते थे। और प्रभास पाटन के 9 नाम, उस पर हम बाद में जाएंगे। आज तो मुझे हाजी मांगरोली शाह समझाने हैं। हजरत हाजी मांगरोली शाह या इराक के रहने वाले थे। इराक से हुक्म मिला था, इनको बशारत हुई थी, वो मांगरोल तशरीफ लाए थे। इसलिए मांगरोली शाह नाम इनका मोहम्मद है, इनके बाप का नाम हसन है, इनके दादा का नाम अली है। ये इराक मुल्क के रहने वाले हैं, और इनकी कुन्नियत अबुल हसन है। इसी वजह से वहां जो मस्जिद बना दी गई थी, वह मस्जिद इराकी के नाम से मशहूर हुई थी। वो शरई मस्जिद थी जो हजरत के वक्त में कायम थी। हाजी मांगरोली शाह यहां तशरीफ लाए। उस वक्त तकरीबन राजा कुंवरपाल का यहां दौर था। उसकी शहजादी थी, इस पर जिन आशिक हो चुका था, और इंतहाई खतरनाक हालात से वो दो चार था। जितने भी बापू साधु इलाज के लिए आते थे, रात को राजमहल में दाखिल होते, सुबह में मैयत पाते, मर जाते थे, काफी मर चुके थे। लेकिन राजा से इनाम की हालत में इसकी मुसीबत को दूर करने की काफी लोगों ने कोशिश की, लेकिन जो भी दाव खेलता वो मर जाता। हाजी मांगरोली शाह को पता चला। हाजी मांगरोली शाह को राजा ने अदब के साथ
अपनी रुदात बयान की और अपना दुखड़ा बयान किया। दुर्वेश लोग लोगों के दुख दर्द को दूर करने का काम करते हैं। राजमहल में दाखिल हुई, कहा देखो जितने भी लोग अमलियात के लिए आते हैं सुबह में मैयत ही उसकी लाश पाते हैं, ना कोई फिक्र की बात नहीं। आराध और वज़ाइफ किए और फिर अमल का सिलसिला। अब सुबह में देखा तो हजरत मामूल के मुताबिक औराद और इबादत में मसरूफ थे और शहजादी बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। वो राजा कुबर पाल जो इंतहाई जालिम मुसलमानों पर मुसीबत के पहाड़ तोड़ता था, जुल्म तशद्दुद जारी हिज्जत करता था। जब मांगरोल से पाटन आप तशरीफ ले गए, वहां कयाम फरमाया दरिया के किनारे पर, जैसे मखदूम जहान या सिकंदर अलैहिर्रहमा, 6 बुजुर्गों का मुझे तस्कीरा करना है। मांगरोल में मखदूम जहान या सिकंदर अलैहिर्रहमा, दौराजी में ख्वाजा सैलानी रहमतुल्लाह अलैह, कच्छ आमरल में दावल शाह पीर, कच्छ आमरल में हाजी पीर और गिरनार तलेटी पर दातार जमील अहमद, जिनका मजार बाजार वहां नहीं है, नगर ठट्ठा बलूचिस्तान में है, वहां कोई मजार नहीं है, खाली चिल्ला कशी हुई है। लेकिन हम बुनियाद बना रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं शेख अबुल हसन अराकी से। वजह उसकी यह है कि शेख अबुल हसन अराकी ही इस खित्ते के अंदर इस्लाम और मुसलमानों के लिए एक उम्मीद की किरण बन करके इस दुनिया कुफ्र की रंगीलियों में तौहीद की शमा रोशन करने में एक बहुत जबरदस्त किरदार अदा किया। राजा इनसे बहुत मुतासिर हुआ और जब वहां कयाम पजीर हो गए मांगरोल से हिजरत करके, चूंकि यहां इस्लामी राष्ट्र बना हुआ था, वहां तशरीफ ले गए। एक बेवा खातून का अकलूता नौजवान बेटा, उसको किसी वजह से राजा ने कत्ल कर दी। वह खातून हाजी मांगरोली शाह के दरबार में हाजिर हुई और अपना दुखड़ा पेश किया। मेरा एक का एक बेटा जो यतीम था, जिसका बाप मर चुका था, जुल्मन राजा ने कत्ल कर दिया। हाजी मांगरोली शाह औरत की फरियाद सुनकर बहुत मुतासिर हुए और इन्होंने एक रुका लिखा। वो रुका आज तक तारीख के सफहात में महफूज है। गजाना अफगानिस्तान में वाक़ है। इस बुजुर्ग की करामत देखो, काम का तरीका देखो, ये सब सीखने की चीज है। बेवा औरत को मरहूम शौहर की और मरहूम नौजवान बेटे की मां को हजरत ने गजाना जाने का हुक्म दे दिया और वह खत लिखकर सुल्तान महमूद की खिदमत में खत लिखा कि दुनिया में तुम बहुत शोर बर्पा किए हो और फुतूहात की तुमने लाइनें लगा डाली है और ये इलाका जुल्म की चक्की में पीसा जा रहा है और यहाँ बर्बरियत की और हैवानियत की इंतहा हो चुकी है और तुम इसकी खबरगिरी नहीं करते हो। यह मजमून जब वहां पहुंचा, राजा बहुत मुतासिर हुआ और वहां से महमूद सीधा गजाना से हिंदुस्तान का सफर नहरवाना पाटन से यह सोमनाथ पाटन तक का करता है और इस खित्ते के अंदर आकर के अपने इस्लाम की नशर इशाअत और कुफ्र की बीक खूनी और जुल्म जारी हिज्जत के खात्मे के लिए कमर कसता है। हाजी मंगरोली शाह रहमतुल्लाह अलैह की 2 बातें मैंने जिक्र की, एक करामत और दूसरी इससे बड़ी करामत। एक औरत महफूज थी, उस जमाने में कोई छेड़खानी नहीं थी, मर्द से बात जल्दी डिक्लेयर हो जाती है। उस जमाने में औरतें बड़ी पाबंद थी और वहां से सुल्तान का जवाब भी आ गया और जवाब के बाद अमली इकदाम भी हुआ और अमली इकदाम के बाद ये किलाए दिन फतह हुआ, जिसमें 3000 शोहदा गंज शोहदा में आराम फरमाते हैं, जो जगह पिछली सनीचर को मिसमार कर दी गई और इसको जमीन दोष कर दिया गया। हजरत हाजी मंगरोली शाह रहमतुल्लाह अलैह रबीउल आखिर की 1 तारीख हिजरी सन 699 को इस दार फानी को छोड़कर दारुल बका में तशरीफ ले गए। सन हिजरी के हिसाब से 747 साल हुए, सन हिजरी के हिसाब से 747 साल हुए और सन ईस्वी के हिसाब से
815 साल हुए। ईस्वी सन 1209 का किस्सा है। इस हिसाब से 815 साल और हिजरी सन 797 का है। इस हिसाब से 747 साल, 699 यानी 747 साल, 750 साल तक वो इस जमीन के अंदर कयाम फरमा रहे। आज भी जमीन में कयाम फरमाते हैं। अल्लाह उनके हालात को बेहतर जानते हैं। बुजुर्गों, एक बहुत बड़ा इतिहास पामाल करने की कोशिश की जा रही है। अब सोमनाथ ट्रस्ट ने दावा जाहिर कर दिया। सोमनाथ की मजहबी हकीकत भी हम जानते हैं। तारीख में आज तक सोमनाथ में जितने भी महंत आए, संत आए और उनका जो खित्ता था, उनकी जो जमीन थी, कभी भी उन पुजारियों ने और 747 साल तक जहां इस्लाम जगमगता रहा, इस खित्ते में कभी भी आपस में तनाव पैदा नहीं हुआ। ये दोनों की आपस के अंदर इंसानी हमदर्दी, इंसानी रवादारी, खुलूस और लिल्लाहियत का बहुत गहरा रिश्ता कभी भी पाटन शहर में हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। हालांकि कदीम जमाने से गैर मुस्लिमीन भाइयों का सोमनाथ अकीदत का सबसे बड़ा, दुनिया के एतबार से हिंदू कौम का, मुसलमानों के काबे के दर्जे का मकाम उसका हासिल है। हिंदू भाइयों के यहाँ मुसलमानों के लिए अपने काबा और किबले का जो मकाम है, वो मुल्क हिंदुस्तान में बसने वाले हिंदुओं का, फिर सनातनी हिंदू हो, फिर ब्राह्मण हिंदू हो, हिंदुओं की कई जातें, तारीख हिंद का भी मैंने मुताला किया है, इसमें हिंदू संस्कृति की सारी बातें बयान की गई है, तो उसको भी जिक्र किया जाएगा। लेकिन साल हाँ साल गुजरने पर भी इतने हालात उस मंदिर पर भी आए, लेकिन कभी जो मुकद्दस मकामात और जो जगहें जिनके पास थी, इन जगहों को कभी मिसमार नहीं किया गया। हाँ, पहले ट्रस्ट ने उस तरफ से जमीन कीमत से खरीद ली और उसकी तौसी की। अब यहां तो बस्ती आबाद है, बस्ती के बाद मशहूर कब्रिस्तान आबाद है, और कब्रिस्तान के बाद काफी गहरी लंबी कोसों जगह खाली पड़ी, और फिर इसके बाद ईदगाह वाक़ई है, और ईदगाह के आगे के हिस्से के अंदर शेख अबुल हसन इराकी और माईपुरी 7 दरगाहें बड़ी बड़ी और 2 मसाजिद तारीखी हैसियत से वाक़ई, वो सब मिस्मार कर दी गई। क्या सबक मिला मुसलमानों को? इतिहास से वाकिफियत जरूरी। यह हमारी जगह है, हमारी जगह थी और कयामत तक हमारी जगह रहेगी। ये एक दुनिया की अदालत है और एक अल्लाह की अदालत में हमने केस रख दिया है, और अल्लाह की अदालत, अल्लाह का फैसला गालिब आकर के रहेगा। लेकिन इसमें अब मुसलमानों की कुछ कमजोरियां हैं। जिस मकसद उज़्मा को लेकर के इराक छोड़कर हिंदुस्तान आबाद किया हो, इनके मकसद जिंदगी में और इतने बड़े सफर के पीछे के हकाइक में हमने कमा हक कहू इनको साथ नहीं दिया, इनको हम समझ नहीं सके। हकीकी बात तो तबलीग इस्लाम के तौर तरीक जो उन्होंने अपनाए थे, इनमें हम इनके हकीकी नाइब नहीं बन सके। ये भले दुख लगता हो, लेकिन कहना पड़ेगा। और दूसरा, यह आसार कदीना में दाखिल, ये पीडब्ल्यूडी में दाखिल, ये पुरातत्व में दाखिल, जैसे हमारे मांगरोल की काफी इमारतें पीडब्ल्यूडी में दाखिल है, यानी आसार कदीमा, यानी जो है पुरातत्व में, और सरकारी रिकॉर्ड पर यह जगह बोलती है। फिर ये अवैध कहां से आई? मुसलमानों ने सब्र तो किया, लेकिन ये सब्र का वो कड़वा घोट है जो अंदर पेट में उतर नहीं सकता है। तारीख के साथ छेड़खानी कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, इसलिए कि और फिर गैर मुस्लिम भी इतने ही ज्यादा अकीदत और आस्था रखते थे
जितने के मुसलमान रखते थे, इसलिए कि इनका मकसद दुनिया तलबी नहीं था, इलाए कलिमतुल्लाह था। इनका मकसद जुल्म जारहियत बर्बरियत का खात्मा था। इनका मकसद इंसाफ दिलाना था। इनका मकसद लोगों में सुकून की सांस पैदा करना था। खैर, सन हिजरी 699 रबीउल अव्वल की पहली तारीख हजरत शेख अबुल हसन इराकी मोहम्मद बिन हसन बिन अली अल इराकी अपनी जान आखिरी के हवाले कर गए। आज उसको 747 साल यानी 750 साल में 3 साल कम बाकी रह गए। सन हिजरी के हिसाब से एक तारीख बदली गई। अफसोस का मकाम है, ये सिर्फ वेरावल और सोमनाथ और पाटन के लिए नहीं, प्रभास पाटन के लिए नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की तारीख में सियाह दिन मनाने के काबिल ये है। इसलिए कि तारीख के साथ एक मंसूबाबंद स्कीम के तहत छेड़खानी हुई है। जरूरत है इस बात की कि हम बारगाह खुदाबंदी में मुतवज्जे हो। शेख अबुल हसन इराकी और मखदूम जहान या सिकंदर में 120 साल का फासला है। शेख अबुल हसन इराकी मखदूम जहान या सिकंदर अलैहिर्रहमा से 120 या 150 साल बाद के हैं, और शेख अबुल हसन इराकी मखदूम जहान या सिकंदर से 120 या 150 साल पहले के हैं। गोया के इस खित्ते के अंदर इस्लाम को लाने वाले और इस खित्ते में मुसलमान हुक्मरान को मुतवज्जे करने वाले और जुल्म जारहियत के खात्मे की जो असास थी, जो बुनियाद थी, दुर्वेशाना हाल में रहकर जिन्होंने इस किलाए दीन में इस्लाम फैलाया था, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर, उनकी रूह मुबारक पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। हजारों अल्लाह ताला की इन पर रहमतें नाजिल हो। बहुत पाकीज़ा इतिहास है जो तारीख के झरोखे से, फारसी से और इस तरह अरबी से, इंग्लिश से आप हजरात की खिदमत के अंदर पेश किया है मुख्तसर अंदाज में। अब उनकी करामतें और उनके असफार के दीगर हालात का ये वक्त नहीं। दूसरी बात, बुजुर्गों, ये मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज की चुंगल से छुड़ाया। अंग्रेज के जमाने में हाजी का मकबरा मौजूद था, उसकी भी तस्वीर मौजूद है। हाजी मंगरू निशान 250 बरस अंग्रेज ने राज किया, और 250 बरस अंग्रेज के राज में भी हाजी मंगरू निशान का मजार चमकता दमकता था। इन सफेद अंग्रेजों ने भी इस तरफ जुल्म जारहियत की निगाह नहीं डाली थी, लेकिन अफसोस काले अंग्रेजों पर जिन्होंने हमारी एक मुतबर्रक जगह को, जहां 3000 शोहदा इस्लाम गंज शोहदा में आराम फरमाते हैं, उन 3000 शोहदा इस्लाम का हम पर एहसान है, जिनके नतीजे में हम चेहरे पर सुन्नत रसूल और लिबास इस्लामी पहन रहे हैं। कुर्बान जाएं, करोड़ों रहमतें नाजिल हो इन 3000 शोहदा इस्लाम को, जो इस लश्कर के शाना बशाना शरीक रह करके जिन्होंने अपनी जान जौन आफरी के हवाले कर दी और सोमनाथ के दरिए के पास हमेशा के लिए अपनी बरकत बना ली। क्या इनका हम पर कोई एहसान नहीं? ये किसी एक मकतबे फिक्र के लोगों का मसला नहीं है, ये मुसलमान कहलाने वाली कौम का मसला है। आज भी मुसलमान फिरकों में, तफरका बंदियों में, कभी मजहब के नाम पर, कभी सियासत के नाम पर अजीब तफरकाबादी का शिकार हो चुका है, अजीब अंदाज का। आज गैर हम पर हंसियां कर रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। इस मुल्क की आजादी के पीछे 51,000 उलमा ने फांसी के फांदे को चूमा है। 3 लाख मुसलमानों ने शहादत हो रही है, 3 लाख कुरान के नुस्खे जलाए हैं,